جی پتہ نہیں آئیں گی شاید. محترم محمد محسن صاحب IAS اور علی جناب محترم المقام محمد عبید اللہ شریف صاحب مدیر اعلیٰ روزنامہ پاسبان بنگلور، جناب علی جناب انور شریف صاحب MD کرول سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ شہنشین پر تشریف لے آئے اور علی جناب کا عمل دعا چاہتا ہے، لہذا برائے تحفظ ایمان و عقیدت قرأت کلام پاک کے لیے میں محترم حافظ جناب حبیب اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ رب العزت میں قرأت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسناب ہی کا صبح کی پہلی کرن میں ہے، حسناب ہی کا صبح کی پہلی کرن میں ہے، حسناب ہی کا صبح کی پہلی کرن میں ہے۔ فوزیہ چودھری، بدلہ صاحب کے صدر اور اسٹیج پر دیگر مہمان خصوصی حاضرین کرام، مجھے آج انتہائی خوشی ہے کہ اردو اکیڈمی اور ٹیم حسنہ نے مل کر یہ پروگرام کو آرگنائز کیا۔ کل ہند مذاہب، اس کے پہلے ہم نے کبھی اتنا سنا ہی نہیں ہے کہ اردو اکیڈمی نے اتنے سارے پروگرام کیے، کیونکہ میں دوسری بار بلکہ یہاں سے جیسے ابھی شفیق قبری صاحب نے اتنے کلمات کہے کہ بیجاپور میڈم نے ایک ڈرامہ شو کیا تھا، اس وقت میں بھی شریک ہوا، اور میں بتاتا ہوں یہ اس ہال کے مقام بہت چھوٹا ہال ہے، وہاں کم سے کم 2,000 سے 3,000 افراد جو ہے وہ ڈرامہ دیکھنے کے لیے موجود تھے، اور اس میں بیٹھنے ہال میں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، اتنا کامیاب مشاہدہ وہاں پر ڈرامہ ہوا تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسے یہ مزاحیہ جو ہے مشاہدہ ہوا ہے، اور میڈم بتا رہی تھی کہ صبح میں جو ہے سینٹرل جیل میں بھی وہاں بھی مشاہدہ ہوا اور بہت کامیاب رہا، اور وہاں قیدیوں کے چہرے پر ایک نئی جان آ گئی اس مزاحیہ مشاہدے سے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے جو قیدیوں سے زیادہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو شہداء حضرات جو پورے ملک سے آئے ہیں تو مزہ آئے گا کہ ہاں جو ہے کرناٹک اور خاص کر بنگلور میں اردو کے قدردان ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ان کی جو ہے عزت افزائی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میڈم اس طرح کے بہت سارے مواقع جو ہے بنگلور اور پورے کرناٹکا کے عوام کے لیے وہ دیتی رہے گی، امید کرتا ہوں۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ہی میڈم کے سامنے میں ایک ڈیمانڈ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میڈم اردو اکیڈمی ابھی بھی کنڑ بھون سے چلتی ہے، تو بنگلور میں ایک ضرورت ہے کہ جو ہے اردو گھر یا جو بھی نام آپ دیجیے اس کی ضرورت ہے۔ ان تمام گیتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے، ایک بہت بڑی تاریخ انہوں نے مرتب کرنے کی کوشش کی لوک گیتوں کی، جو یقیناً قابل داد و تحسین ہی نہیں بلکہ قابل قدر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو اعزازات سے بھی نوازنا چاہیے تاکہ آنے والی نسل میں بھی لوگ جو ہے تحقیق کی طرف مائل ہو سکیں۔ لہذا میں کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے ان کا استقبال کرتے ہوئے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ گلستان شادی محل میں آج بہار آئی ہے۔ کل ہند مزاحیہ مشاعرہ آج تک صرف شادیوں کو دیا جاتا تھا، کچھ چھوٹے موٹے فنکشنوں کو تو موقع نہیں تھا، لیکن یہ تاج بیل میڈم
चेयरपर्सन साहिबा ने डॉक्टर यूसुफ साहब से इजाजत लेकर जो दाग बेल डाली है, तो इंशाअल्लाह इसके बाद जब शादियां नहीं होंगी तो अदबी इजलास होंगे और माँ की गोद में सीखी जाने वाली जुबान की चाशनी और उसकी कशिश कुछ अलग ही होती है। आज अपनी माँ की गोद के भाया भाया टीपू बादशाह के मुल्क में हिंदुआ मुसलमाना दूध शक्कर में हल्दी मिल को जैसे भाया भाया और माओं की दुआ थी क्या होती और जो उनका एहतराम था टीपू का, वो वजू करके नाम लेना चाहती थी तो वो बोलते हैं यहाँ पे वजू करने से बदियां जैसे झड़ती, वजू करने से बदियां जैसे झड़ती, टीपू की तलवार से शरा वैसा कटती। क्या उस जमाने कुछ लिंगायता बहुना हिंदुआ भी करते, मुसलमाना करती दुआ टीपू के वास्ते, मुसलमाना करती दुआ टीपू के वास्ते, हिंदुआ भी करती दुआ टीपू के वास्ते। और माओं की क्या दुआ होती थी? हमारे माओं के पेट में ऐसा बेटा आने वो टीपू जैसा शेर नर हो। ने भी इसमें जुड़कर जो हिस्सा लिया। आज के ये फंक्शन में स्पीचेस ना रखते तो अच्छा होता। हम लोग मैं भी आप लोगों की तरह बेताब हूँ मुशायरा सुनने के लिए। बेहतर होगा आप मुशायरा सुने और मेरी स्पीच ना सुने। मैं उर्दू एकेडमी और टिप्पू सेक्युलर सेना जो फंक्शन आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनको मैं मेरे दिल से ऑन बिहाफ ऑफ सब लोगों से इनको मैं मुबारकबाद देती हूँ। और हमीद भाई बोले जैसा जहाँ पे यहाँ शादियों के सेहरे बने जाते थे, गुलिस्तान शादी महल में आज एक उर्दू एकेडमी के थ्रू और टिप्पू सेक्युलर सेना के थ्रू एक फंक्शन हो रहा है। इंशाअल्लाह ये हॉल हम और आगे चल के भी इस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें कौम की खिदमत में, चाहे वो मुशायरे हो और कुछ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, जो कुछ भी हो। यहाँ पे ऐसा अक्सर ऐसा एक ऑफन एक फंक्शंस होते रहेगा कि गुजारिश करूँगी मैं। और लेट्स होप कि वी ऑल एंजॉय द इवनिंग। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुशायरे के सदर आले विखार मोहतरमा डॉक्टर फौजिया चौधरी साहिबा, मेहमान खुसूसी आली जनाब मोहम्मद मोहसिन नयेस, एक और मेहमान खुसूसी मोहतरमा सुल्ताना बेगम साहिबा, हमीद साहब, नए दिल्ली पासबान के मुदीर मसूद फौजदार साहब, यहाँ लिखा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। KMDC के कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मसूद फौजदार, टीपू सेना के सदर यासीन बाबा पेश करेंगे वो जगह हमें। शुक्रिया, खुदा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरपर्सन डॉक्टर फौजिया साहिबा, मेरे बुजुर्ग उबैदुल्लाह शरीफ साहब, मोहसिन साहब, हमीद साहब, सुल्ताना साहिबा, शफीक, मेरे दोस्त शफीक हमीदी साहब, मेरे साथी नूरुल्लाह साहब और मेरे ख़ास दोस्त यासीन बाबा साहब। मैं जैसा ही स्टेज पर पहुंचा, मैंने इस पर नज़र पड़ी और मैं यासीन बाबा से कहा कि मुझे आज पासवान का एडिटर बना दिया गया है। तो उसी वक्त उन्होंने हमारे उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने इस पर बड़े अच्छे अंदाज से कहा। दोस्तों, आज यहाँ पर अदबी महफिल है। इस
गुलपोशी फरमाएं। अब इसी के साथ अली जनाब मोहतरम मकाम मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब की खिदमत में शाल और गुलपोशी पेश। टीपू सेकुलर सेना के कन्वीनर मोहम्मद यासीन बाबा साहब सदर TSS गुलपोशी वो शालपोशी फरमा रहे हैं। तो इसी के साथ जो है मोहतरम मसूद फौजदार साहब की गुलपोशी जनाब यासीन मोहतरम डॉक्टर फौजिया चौधरी साहब फरमाएंगे। दोनों मिलकर इश्तराक है। डॉक्टर अली जनाब डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब की गुलपोशी वो शालपोशी होगी। आंसर रजिस्ट्रार साहिबा से हम गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब की गुलपोशी व शालपोशी फरमाएं। मोहतरमा सुल्ताना बेगम साहिबा की खिदमत में मोहतरमा रजिस्ट्रार साहिबा जो है गुलपोशी व शालपोशी फरमा रही हैं। और मैं अनवर शरीफ साहब की गुलपोशी व शालपोशी के लिए मोहतरम मोहम्मद वसीम साहब से शुरुगा की मोहतरम उबैदुल्लाह शरीफ साहब से गुजारिश है कि टीपू सेकुलर सेना के सदर जनाब मोहम्मद यासीन बाबा की गुलपोशी व शालपोशी फरमाएं। मोहतरमा रजिस्टर फहमीदा साहिबा शहनशीन पर तशरीफ ले आए और मोहतरमा सुल्ताना बेगम साहिबा उनकी गुलपोशी फरमाएंगी। और आखिर में कर्नाटक रियासत कर्नाटक के मोतबर शायर जनाब मुनीर अहमद जामी साहब की और इसी के साथ कर्नाटक उर्दू अकेडमी की चेयरपर्सन मोहतरमा फौजिया चौधरी साहबा की भी जो है लाजमी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। एक रस्म है। तो आखिर में जो है कर्नाटक उर्दू अकेडमी का खबरनामा के 2 शुमारों की रस्म इजरा अमल में आएगी
बदस्त मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब और जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब IAS, और जी ये भी सही है, मोहम्मद मोहसिन साहब और मसूद फौजदार साहब, टीपू सक्कर सेना के सदर यासीन बाबा साहब और अनवर साहब और मोहतरमा एक शुमारे के इजरा अमल में आए और दूसरे शुमारे के इजरा मोहतरम मकाम मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब के दस्तूर मुबारक से अमल में आए। और दूसरे शुमारे के रस्म इजरा मोहतरम मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब के दस्ते मुबारक से अमल में आएगी और उनके साथ डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब, मोहतरमा सुल्ताना बेगम साहिबा और रिश्तार साहिबा भी रहेगी। तो आखिर में जो है मैं गुजारिश करता हूँ सदारती कलमात के लिए मोहतरमा डॉक्टर फौजिया चौधरी साहिबा से कि वो सदारती कलमात पेश करें। आप तमाम हजरात पुरजोर अंदाज में इस्तेफा करें। मोहतरमा डॉक्टर फौजिया चौधरी साहिबा, चेयरपर्सन कर्नाटक उर्दू अकेडमी, सदारती कलमात पेश करेंगी। एक शेर अक्सर मुझे शेर बहुत कम याद आते हैं, खासकर जब मैं बातचीत करती हूँ। शेर कहना या सुनाना ऐसे ही लगता है जैसे जंगल से शेर पकड़ा जाए। हर आन हर लम्हा शिकायत है आपसे, एक बहुत ही आसान शेर है। हर आन हर लम्हा शिकायत है आपसे, अल्लाह अल्लाह रे कितनी मोहब्बत है आपसे। जो लोग हमसे शिकवा करते हैं दरअसल वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसलिए खुश हैं कि इस मोहब्बत की बुनियाद में उर्दू है और उर्दू शीरीन ज़बान है, और उसी शीरीनी और मिठास के साथ मैं आज यहाँ बैठे तमाम मेहमानों का और आप तमाम का जहाँ दिल की गहराइयों से इस्तकबाल तो हो चुका, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और साथ में ये कहना चाहूँगी कि जिन ने जितनी बातें यहाँ पेश की हैं हम भी मुँह में ज़बान रखते हैं, लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुंह में ज़बान रखना ही बड़ी बात नहीं है, सब्र करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ यहाँ बैठे हुए तमाम मेहमानों से, मेजबानों से, कि आज़ादी के बाद से आज तक इस तरह के स्टेजों से, मसनदों से न जाने कितने जियाले मुफर्रिरों ने अपनी बातें पेश की, कितने जियाले मुफर्रिरों ने आपका दिल बहलाया और तालियां बटोरी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आज तक कर्नाटक की तारीख में इसके बावजूद उर्दू भवन क्यों नहीं बना? हम में ऐसे लोग हैं, इतने दौलतमंद लोग हैं कि अगर वो चाहते हैं तो उनमें का हर एक शख्स
सोचती हूँ, अपने जहन में नजर में रखती हूँ कि जिस दिन मैंने इस कुर्सी को हासिल किया है, मैं इस कुर्सी को छोड़ने के दिन को अपने नजर में रखती हूँ, क्योंकि सियासतदान हो, हुक्मरान हो, आते हैं जाते हैं। जिस दिन आते हैं लोग उन्हें सलाम करते हैं, जिस दिन इसको छोड़ते हैं लोग उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। मैं हकीकत को अपनी नजर में रखती हूँ और रख कर अपना हर काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी काम करूँ अपनी जबान के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए दिल से करूं, किसी के दिखाने के लिए न करूं, किसी की तालियां बटोरने के लिए न करूं। हमने हुकूमतों को लिखा, फिर हमें जो रकम हासिल हुई है तामीर के लिए 1 करोड़ 20 लाख, 1.5 साल से हर फंक्शन में मैं ये बात रख रही हूं कि लोगों, हमें 1 करोड़ 20 लाख का सरमाया मिला है हुकूमत की तरफ से। मैं चाहती हूं कि उसको इस्तेमाल करूं। कम से कम एक छोटी ही जमीन उन लोगों में से जो दौलत रखते हैं, उन लोगों में से जो दिल रखते हैं, साहिब जायदाद हैं, क्या एक टुकड़ा जमीन का दे नहीं सकते? ना दें, लेकिन जो पैसा आया है मैं चाहती हूं कि वो वापस गवर्नमेंट को न जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन 1.5 साल के बावजूद आज भी ये ख्वाब ही है, इसकी कोई हकीकत सामने नहीं आई। और जहां तक मैं समझती हूँ, अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बिना पर मैं ये बात कहती हूँ कि जब सियासतदानों की, जब हमारे अमायदीन की, कायदीन की अदा टकराती है, तो इस टकराने की वजह से हमारे तमाम मसाइल जो के दूर रह जाते हैं। और हर आदमी की, हर शख्स की ये भी साथ नहीं होती कि इतने बड़े काम करे। मैं हमेशा हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से, हमेशा अपने सियासतदानों से ये गुजारिश की हूँ और अब भी करूंगी कि सारे क्यों एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं होते, सारे मिलकर मुत्तहिद होकर एक बात पर मुत्तफिक क्यों नहीं होते? अगर हो जाए तो एक भवन का क्या मसला है? ये पूरा मुल्क हमारा है, हमारी सरजमीन है, हम इसी की मिट्टी हैं, इसी मिट्टी में दफनाए जाने वाले हैं। तो क्या हम इस मिट्टी के हकदार नहीं होंगे? मैं चाहती हूं कि नित नए प्रोग्रामों के जरिए उर्दू वालों की खिदमत करें। जैसे मैं आज के दिन आपको बताना चाहूंगी, हमने तिब्बी इमदाद दी है उन शोरा, उदबा और जर्नलिस्ट लोगों को जो उर्दू की खिदमत करते हैं, उन जो बीमार हैं, अपना इलाज नहीं करवा सकते, उन्हें तिब्बी इमदाद वहाँ फरमाई गई है, वहाँ पहुँचाई गई है। इसी तरीके से हमारा इलाका दक्कन का इलाका है, यहाँ दक्कनी बोली जाती है। मैंने दक्कनी पर रिसर्च करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। दक्कनी की किताबें जो कदीम तहजीब का, अदब का हमारा विरसा है, ऐसे विरसे को आज की जदीद उर्दू में ढालने का हमने इंतजाम किया है। रिसर्च करने वाले माहिरीन की कमेटी बनाई है। जब मैंने देखा कि हमारा अकादमी का कोई कानून नहीं है, तब हमने चार्टर बनाया है और अनकरीब माहिरीन से तरतीब दिया हुआ चार्टर और हमारा बायलाज सीएम तक जाने वाला है। और वो जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा या उस पर सिग्नेचर हो जाएगी तो हम बेजड़ के पौधे की तरह नहीं रहेंगे। इस तरह हमारे यहाँ सेमिनार तो होते हैं, मुशायरे तो होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस तो होती हैं, वर्कशॉप होते हैं, शायरों को, अदीबों को अवार्ड दिया जाता है, किताबों पर अवार्ड दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो प्रोग्राम हमने तरतीब दिए हैं, 1-2 की आपको मैं मिसाल देना चाहूंगी। जैसे हमने हर जिले में, कर्नाटक के 30 जिले हैं, 30 जिले, हर जिले में हमने एक प्रोग्राम की इजाजत दी है। जैसे इनसे मिली, क्योंकि नई नस्ल हमारे उलमा, शोहरा और हमारे अदब के लिए, जबान के लिए काम करने वालों को जानती नहीं है। इसलिए नई नस्ल को उर्दू वालों से, अदीबों से करीब लाने के लिए इस
ایک اکیڈمی کو ایک پلیٹ فارم بنانے کے لیے ان سے ملیے جیسا پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور آج کرناٹک کے ہر ضلع میں یہ پروگرام ترتیب کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پروگرام صرف 5,000 کی رقم اس کے لیے دی جاتی ہے۔ پورے ہندوستان میں کوئی اردو اکیڈمی ایسی نہیں ہے جس کا پروگرام 5,000 میں ترتیب دیا جاتا ہو، آپ کی اطلاع کے لیے غرض ہے۔ اسی طرح حاصل مطالعہ، ہمارے یہاں انٹرنیٹ کی وجہ سے مطالعے کی عادت ہماری نئی نسل سے جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، تو ان کو مطالعے سے جوڑے رکھنے کے لیے، کتابوں سے جوڑے رکھنے کے لیے ہم نے حاصل مطالعہ پروگرام کو ترتیب دیا، جس میں 1-2 لوگ جو 1 مہینے کے اندر کتاب پڑھتے ہیں، چاہے وہ کتاب کسی موضوع کی ہو، کسی زبان میں ہو، وہ آ کر اس کی خوبیاں، خرابیاں، اچھائیاں یا انہیں وہ کتاب کیسی لگی وہ سامعین کو سناتے ہیں، اور یہ پروگرام میں پورے 30 اضلاع میں ہو رہے ہیں، بخوبی چل رہے ہیں اور لوگ انہیں بہت پسند کر رہے ہیں۔ تو یہ پروگرام بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی رقم ہم نے صرف 5,000 مقرر کی ہے۔ اسی طرح تحریری مقابلے ادبا کے لیے، خواتین کے لیے پروگرام، ادب اطفال کے لیے پروگرام، صحافیوں کے لیے پروگرام، ہر شعبے کو، ادب کے ہر موضوع کو لے کر، ہر میدان کو لے کر ایک چھول نہ آئے ایسے پروگرام ہم نے ترتیب کیے ہیں۔ حالانکہ یہ میں فخر کے لیے بات نہیں بتا رہی ہوں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں۔ سامعین، کہنے کو بہت کچھ ہے، بہت کچھ کہا بھی جا سکتا ہے، لیکن کرنا، اور وہ بھی منفی حالات میں رہتے ہوئے ایک ماحول بنانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ میرا 1.5 سال کا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے جب میدان میں کوئی عورت آتی ہے تو اس کا دشمن کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، اس کا دشمن سب سے پہلے ہم قوم مرد ہی ہوتا ہے، اور وہ ہر پل پر، ہر قدم پر اس پر روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت ہے اور وہ اپنی حق میں رہے۔ جب ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہر پل، ہر لمحہ ہمیں ایسی کئی نظروں کا سامنا ہوتا ہے، ایسے کئی خیالات کو جھیلتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی انسانوں کو، خاص کر ہم مسلمانوں کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے، اور ہماری زبان اردو، چاہے اس پر کتنے ہی الزامات لگائیں، چاہے اس کے لیے کتنی ہی باتیں یہ بتائی جائیں کہ مسلمانوں کا لیبل لگا کر ہی اردو کو کنارہ کش کیا گیا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس بات کو آج ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ یہ ہماری زبان ہے، اور اس زبان کے ساتھ ہمیں جینا ہے، اور اس زبان کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ لوگوں، یہ وہ زبان ہے جو علی عادل شاہ کی زبان تھی، قلی قطب شاہ کی زبان تھی، ولی کی زبان تھی۔ 700-800 سال کا دکن ورثہ رکھتا ہے اپنے خوبصورت اور بہت ہی ثقیل ادب کا۔ اگر اس زبان کو ہم چھوڑیں گے، نہ ہم دین کے رہیں گے، نہ دنیا کے، ہماری تہذیب ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ آج جو ہم ساری دنیا میں رذیل ہو رہے ہیں، جہاں اس کے کئی اور وجوہات ہیں، کتنے ہی وجوہات کیوں نہ ہو، اس میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارا ناطہ ہماری مادری زبان سے کٹ چکا ہے۔ زبان شعور رکھتی ہے، ایک تہذیب رکھتی ہے، ایک ثقافت رکھتی ہے۔ جب ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے معاشرے سے کرتے ہیں، جب ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں تو دراصل تہذیب سے پچھڑ جاتے ہیں، پسماندہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں اس زبان کے نہ سیکھنے کی وجہ سے، نئی نسل اس زبان سے دور ہونے کی وجہ سے کوئی جینیس ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ ایک بہتر مقرر کو بھی کام ترس جاتے ہیں، سنائی نہیں دیتے۔ زبان پر، اس کے لفظیات پر، اس کے ادب پر، اس کی ثقافت پر اگر ہماری گرفت مضبوط ہو تو پھر کیا عجب کہ ہم بہترین وکیل پیدا کریں گے، کیا عجب کہ ہم بہترین مقرر دیں گے، کیا عجب کہ ہم بہترین محقق دیں گے اس زمانے کو۔
लेकिन आज हम गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे भी हैं। आज हमारी कौम के साथ पूरी दुनिया में नजर दौड़ाइए, पस मंजर में क्या नहीं चल रहा है। हमारी नजरों के सामने रोहिंग्या मुसलमान भी हैं, कश्मीरी मुसलमान भी हैं, अफगानी मुसलमान भी हैं, फलस्तीनी मुसलमान भी हैं। एक दर्द है जो दर्द मुश्तरक है। ये दर्द, शायद इस दर्द मुश्तरक की गूंज अब हमारे कान सुन नहीं पाते, क्योंकि ये दर्द मुश्तरक अब मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ तरह से मीडिया के हवाले होकर मीडिया का शिकार हो गया है। और दूसरी कौमें जो मीडिया पर हावी हैं, इस दर्द की तरसील करने से आजिज हैं। हत्ता कि फिल्म इंडस्ट्री इसके जरिए से भी एक दर्द की, एक कौम की जो लॉबी बननी चाहिए थी, कौम के जो दर्द की नुकासी होनी चाहिए थी, आज वो भी नहीं हो पा रही है। हराम हलाल के चक्कर में आज हम मुअल्लक़ हैं। न ये करते बनता है, न वो करते बनता है, न दुनिया ही मिला, न सनम ही मिला। हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं, या फिर अफजल तरीन गहराइयों में दफन होते जा रहे हैं। दोस्तों, बस मेरी इतनी गुजारिश है आपसे, आज हम पूरी दुनिया में मजहब के नाते एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं दावत देती हूँ कि उर्दू जबान का सीना, उर्दू जबान का दिल इतना वसी है कि आप सारे इसमें समा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को आप कौम का प्लेटफॉर्म बनाइए। इस प्लेटफॉर्म से अपने जो मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आइए, अपने दुखड़ों के साथ, अपनी मुसीबतों के साथ, अपनी परेशानियों के साथ वसी दिल से उर्दू जबान बहुत ही चाहतों के साथ आपका इस्तकबाल। मैं आप तमाम को उर्दू अकेडमी आने की दावत देती हूँ, उर्दू अकेडमी से जुड़ने की दावत देती हूँ। ये दरअसल उर्दू से जुड़ना नहीं है, ये दरअसल अपने माजी से जुड़ना है, अपनी सखाफत से जुड़ना है, अपनी तहजीब से जुड़ना है, अपनी लफ्जियात से जुड़ना है, अपनी माँ से जुड़ना है। इसके आगे और मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों का, मेजबानों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेती हूँ। शुक्रिया। अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर फौजिया चौधरी साहबा का, जिन्होंने जो है अपने दर्द और कर्ब को लफ्जों में ढालकर आपकी समातों तक पहुंचाने की कोशिश की और बेदार हो जाने का पैगाम दिया। यकीनन हर लफ्ज जो है उनका कर्ब में डूबा हुआ था, उर्दू से मोहब्बत में डूबा हुआ था। तो उनकी खिदमत में मैं हाजिर तशक्कुर पेश करता हूँ और पहले इजलास के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। इसके बाद में जो है मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है और ये पहले निशिस्त का इख्तिताम हो गया। तो आइए मैं तो शोरा इकराम से गुजर शफीक हामिदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हजरात, सबसे पहले एक दुआया खता आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर पसंद आए तो आमीन कहिएगा कि ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे। ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, एड्स में उनको मुब्तला कर दे। अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करे। ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, एड्स में उनको मुब्तला कर दे। आइए हजरात, एक मतलब 2-3 शेर समाप्त कीजिएगा कि मुखलिसी मेरी कुछ इस तरह मिटा दो यारो। सुकून था, हमने खुजा लिया, ये हमारा सुकून था। हम चाह कर भी उसको सजा दे नहीं सके, उसकी रगों में क्योंकि हमारा ही खून था।
आइए एक मतला एक 2-3 शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, समाप्त कीजिएगा। इधर देखते हैं उधर देखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, खुदा जाने तिरपट किधर देखते हैं, खुदा जाने तिरपट किधर देखते हैं। मतलब से खिदमत है। दिल जला को तुम मेरा, रोशनी करो न को, दिल जला को तुम मेरा, रोशनी करो न को, बन के खुद ही परवाना, जल को तुम मरो न को, बन के खुद ही परवाना, जल को तुम जी जी आता जो भी दिल में है मामू, खुल्लम खुल्ला बोल डालो, जो भी दिल में है मामू, खुल्लम खुल्ला बोल डालो, अंदर अंदर घुट घुट को वैसा चिमरो। ये भी अजब सितम तरीफी है कि अली साहब के बाद मैं याद किया है, शेर मैसूर की सरजमीन पर हूँ और इसमें इश्तराक भी है PSS का। तो हाल ही में जो हंगामे हुए, हाल ही में जो हंगामे हुए उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए शेर मैसूर के नाम पर एक खिता है, शेर मैसूर की नज़र मुलाजा फरमाए कि तेरी वतन परस्ती सदा याद रह गई, तेरी वतन परस्ती सदा याद रह गई, हम हिंदियों के दिल में वो आबाद रह गई, हम हिंदियों के दिल। मेरी सब जेब खाली करके कहती हो खुदा हाफिज। अच्छा, मेरी सब जेब खाली करके कहती हो खुदा हाफिज, मेरे संग आज ही आना, यूं ही फिर कल नहीं कहना। ज़बान से आपके अच्छा नहीं लगता है ये जुमला, अच्छा टिपिकल हूँ तुम्हारा मैं, मुझे अंकल नहीं कहना। और आप इसे समाप्त करें। जिंदा दिली का सबूत है साहब। मेरे सेल फोन में बैलेंस भेजो कहती है मुझको। अच्छा, मेरे सेल फोन में बैलेंस भेजो कहती है मुझको, नहीं भेजूं तो वो मुझको परेशान हाल करती है। वाह, हुआ लड़ने लगी बीवी जी, जिस दिन से वलीमा हुआ लड़ने लगी बीवी, उस दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। उस दिन से मेरे घर कोई मेहमान नहीं है। और शेर मुलाजा ने बता रखा कि खैरात नहीं देगा तो मैं तुझको कहूंगा। अच्छा, खैरात नहीं देगा तो मैं तुझको कहूंगा, तू भी है भिखारी कोई धनवान नहीं है। वाह 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 वाह। जबान में यह लिखा है जी, आज के हालात से मुतासिर होकर मैंने यह लिखा कहा है, टीपू से प्यार जो करे जी तुम उसको प्यार दो। वाह, टीपू से प्यार जो करे तुम उसको प्यार दो, उस पर मोहब्बत अपनी फराखत से वार दो। वाह वाह वाह। टीपू से प्यार जो करे तुम उसको प्यार दो, उस पर मोहब्बत अपनी फराखत से वार दो, इज्जत से उनका नाम कोई लेता है तो ठीक है जी, इज्जत से कोई उनका नाम कोई लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो उसके गले पर चांटा मार दो। वाह वाह वाह। दिनों की वजह से चेहरे का रंग जल गया, बाल सफेद हो गए, वरना एक दौर ऐसा था हजारों में नजर आता था वो बलवान था मैं भी।
कुंवारी लड़कियों की जान था, अरमान था मैं भी। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। हजारों में नजर आता था वो बलवान था मैं भी। हाँ हाँ, कुंवारी लड़कियों की जान ये मुंह और मसूर की बात मैं भी। जो मेरी उम्र की बुढ़िया है उनसे पूछ लो जाकर, जवानी के दिनों में हूबहू सलमान था मैं भी। वाह वाह वाह, इतनी तो खुशफहमी में जीना चाहिए। वाह वाह। चार मिसरा समाप्त करें कि हर खुशी को शराब कर डाले। अच्छा, हर खुशी को शराब कर डाले, जीना मरना अजाब कर डाले। जब से कुर्सी पे आ गए मनहूस, सबका खाना खराब कर डाले। वाह वाह वाह। किस्मत फूट जाती थी जी खुशी की हाथ जो आती थी साल छूट जाती थी जी। कहीं कुछ बात के बनते ही किस्मत फूट जाती थी, कहीं कुछ बात के बनते ही किस्मत फूट जाती थी। खुशी की हाथ जो आती थी साथ छूट जाती थी। मैं शायर हूँ पता चलता था जब भी लड़की वालों को, बस इतनी बात पर हर बार मंगनी टूट जाती थी। वाह 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 वाह। कहीं कुछ बात के बनते ही किस्मत फूट जाती थी। खुशी की हाथ जो आती थी साथ छूट जाती थी। मैं शायर हूँ पता चलता था जब भी लड़की वालों को, बस इतनी बात पे हर बार मंगनी टूट जाती थी। क्या करेंगे देखे भी समाज करे थे। औरों की कहानी सुन सुन कर मुझ में भी उमंगे जागी थी। अच्छा, औरों की कहानी सुन सुन कर मुझ में भी उमंगे जागी थी। तब मैं भी पड़ोसन से बोला चल प्यार की बातें करते हैं। अच्छा, अरे वाह वाह, हिम्मत किया बाबा। औरों की कहानी सुन सुन कर मुझ में भी उमंगे जागी थी जी। तब मैं भी पड़ोसन से बोला चल प्यार की बातें करते हैं जी। इस बात पे उसने थाने में पहुंचाया मुझे, तब समझा मैं ये इश्क ये दुनिया वाले सब बेकार की बातें। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह। औरों की कहानी सुन सुनकर मुझ में भी उमंगे जागी थी। तब मैं भी पड़ोसन से बोला चल प्यार की बातें करते हैं। इस बात पे उसने थाने में पहुंचाया मुझे, तब समझा मैं ये इश्क ये दुनिया वाले सब बेकार की बातें करते हैं। अच्छा जी जी, राइट राइट। जब से उम्र बड़ी है कामा खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, जब से उम्र बड़ी है कामा खिलाफ कर रही, ब्यूटिशियन के घर का डेली तवाफ कर रही। वाह, अरे वाह। जब से उम्र बड़ी है कामा खिलाफ कर रही, ब्यूटिशियन के घर का डेली तवाफ कर रही। समझो तो कैसा समझो, बोले तो नहीं समझ रही। चेहरे को झुर्रा है तो आईने को साफ कर रही। उमंगे भी हैं जवान, दिल भी मेरा जवान है। उमंगे भी हैं जवान, फिर किसने कह दिया तो मैं नौशा नहीं हूँ मैं। दिल भी मेरा जवान है, उमंगे भी है जवान, फिर किसने कह दिया तो मैं नौशा नहीं हूँ मैं। दाढ़ी सफेद देख के घबरा न जाइए, नुजले से बाल उजले हैं बूढ़ा नहीं हूँ। वाह 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 वाह। खुशफहमियों के साथ जिया भी तो जा सकता है कम से कम, बहुत अच्छी बात है। वाह वाह। बीवी मरीज दिल है तो शौहर शुगर में है। हाँ, बीवी मरीज दिल है तो शौहर शुगर में है। हर डॉक्टर का रिस्क रखा उनके घर में है। वाह वाह। हर डॉक्टर का रिस्क रखा उनके घर में है। जनता का गम बसा हुआ जिसके जिगर में है। जनता का गम बसा हुआ जिसके जिगर में है। नेता वही हमेशा हवाई सफर में है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेता वही हमेशा हवाई सफर में है। रखते हैं टोपी एक कि हम दूसरे के सर। रखते हैं टोपी एक कि हम दूसरे के सर, बस टोपियां बदलने का सौदा ही सर में है। वाह वाह। हुस्न इत्तेफाक अजब देखिए जनाब। अच्छा, ये हुस्न इत्तेफाक अजब देखिए जनाब। पुलिस में भी लीस है, इब्लीस में भी लीस। अच्छा, अरे वाह 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 वाह। पुलिस में भी लीस है, इब्लीस में भी लीस। हुस्न इत्तेफाक अजब देखिए जनाब। पुलिस में भी लीस है, इब्लीस में भी लीस। दोनों का काम है
शरीफों को मारना। अच्छा। दोनों का काम है, शरीफों को मारना। 19 एक पढ़ता है तो दूसरा है 20। वाह 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 वाह। शायद समाज करें कि अर्ज किया है कि नौमश्क एक शायर बेसुर ने ये कहा। अच्छा। नौमश्क एक शायर बेसुर ने ये कहा, टकरा गई गजल मेरी अहमद फराज से। नौमश्क एक शायर बेसुर ने ये कहा, टकरा गई गजल मेरी अहमद फराज से। सुनते ही उसकी बात मुझे आ गई हंसी, क्या साइकिल लड़ेगी हवाई जहाज से, क्या साइकिल लड़ेगी हवाई जहाज से। और एक कते का हुक्म हुआ है करें कि इंसानियत हमारी कहाँ जा रही है, तो देखें कि 2-4 लाख मार के एक शख्स बढ़ गया। कहती है हंगामा जी है नहीं, आप ही को उठाना पड़ेगा, इसलिए कि आप लंबे माइक वाला। हाँ ये ठीक है, छोड़िए। आखिरी में खते से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। कहता हूँ कि महफिल में आना जाना अच्छा सा लग रहा है। वाह। महफिल में आना जाना अच्छा सा लग रहा है, ताजा गजल सुनाना अच्छा सा लग रहा है। हंगामा तेरा आना, अब महफिल से तेरा जाना, जी हंसना भी और हंसाना अच्छा सा लगा। वाह। तो आइए एक नज्म आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। उन्वान है पैसा। समझ फरमाइए। जी जी। नादान को चालाक बना देता है पैसा। नादान वाह वाह। माइक भी आप पे कुर्बान होना चाहता है। बेखौफ बेखतर है जो आपकी ज़बान अल्लाह से कायम रखे वो है उर्दू ज़बान। वाह। तो एक शेर समाज सुनो है जी। जब शेर कहने की इजाजत है उसकी एक शेर सुनो है। ठोकर तुम्हारी और कहा उसने सवारी। अच्छा। ठोकर तुम्हारी और कहा उसने जो सारी, हमने रसीदा थप्पड़ कहा आम वेरी सॉरी। वाह। हमने रसीदा थप्पड़ कहा आम वेरी आई एम सॉरी। वाह। 2 दोस्त के नाम है। एक दोस्त कह रहा है क्या खूब लग रहे हो, छुपा है आलीशान। बहुत। क्या खूब लग रहे हो, छुपा है आलीशान। मरहूम का है सदका पहन लो मेरी जान। वाह। कुदरत ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया। कुदरत ने कैसे कैसों का फ्यूचर बना दिया। गुंडों को कातिलों को मिनिस्टर बना दिया। गुंडों को कातिलों को मिनिस्टर बना दिया। जब से गली गली में खुले ब्यूटी पार्लर, जब से गली गली में खुले ब्यूटी पार्लर, कौवे को भी सजा के कबूतर बना दिया। आपको दरवाजा नहीं मालूम शायद ब्यूटी पार्लर का? नहीं, मैं पैदाइशी काला। अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा। जब से गली गली में खुले ब्यूटी पार्लर, कौवे को भी सजा के कबूतर बना दिया। सेलफोन ही से गांव का कल्चर बदल गया। सेलफोन ही से गांव का कल्चर बदल गया। बेटा खुद अपने डैडी का डैडी निकल गया। बेटा खुद अपने डैडी का डैडी निकल गया। जवानी लौट कर आती नहीं माजून खाने से। जवानी लौट कर आती नहीं माजून खाने से। जवानी लौट कर
डुबा कर अपने यजमा को वो हिंदुस्तान आया है। ये खास शेर आपकी समातों के हवाले, उस तरह का तजुर्बा। जी सर, उस तरह का। जवानी दुबई से साड़ू आया है, कमा कर खूब लाया है। डुबा कर अपने यजमा को वो हिंदुस्तान आया है। न काम आएगी ऐ नौशा कभी ये भीख की दौलत। न काम आएगी ऐ नौशा कभी ये भीख की दौलत। जी जी सब सुन रहे हैं। न काम आएगी ऐ नौशा कभी ये भीख की दौलत। न काम आएगी ऐ नौशा कभी ये भीख की दौलत। न काम आएगी ऐ नौशा कभी ये भीख की दौलत। वही काम आएगा तूने जो मेहनत से कमाया है। को मैं डोले को फिर पीटूंगा, औता मुगिरा को मैं एजेंट अगर मिल जाए मारूंगा भगा को मैं। डोले को फिर पीटूंगा, औता मुगिरा को मैं। वो घर के सब काम मुझे करने रख दिया, काला को जंगल में मुझे चरने रख दिया। वहाँ कच्चा पक्का खा को मुझे हो गया है मुलम। किन मंजिलों से गुजरे। अरे वाह, ये आप भी किसी के पुर्जे का काम है। पारिन को कमाने जाए। फिर भी सुनाना क्या है? काय को पढ़े गजल तुम। अरे वाह, जो पढ़ा गजल में फिर भी सुनाना क्या रहे, असले को बैठी सोपी उनको रुलाना क्या रहे। वाह 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 वाह, इतना एहसास हो गया और क्या चाहिए। फिर से उनको कई को दोबारा इबरत का समंदर है ये महफिल शोरा भी, इबरत का समंदर है। उभरे तो सिकंदर है, डूबे तो दलिंदर है। आपकी तवज्जो चाहूंगा। एक मसला की शेर है पहले सहे नसीब ने उठा दीजिए, वो माइक उठा दीजिए थोड़ा सा, ऊपर वाला माइक जो है। हाँ चलो, हो गया काम। सहे नसीब है माय डार्लिंग बेनीवोलेंट। अच्छा, सहे नसीब है माय डार्लिंग बेनीवोलेंट। विद इन माय हार्ट खुशी आजकल प्रीवेलेंट। वाह वाह वाह। फिर शेर अर्ज क्या है? हजार लाख सही लेट मी टेल यू वन थिंग नाउ। हजार लाख सही लेट मी टेल यू वन थिंग नाउ। तेरी गली में ठिकाना है मेरा परमानेंट। वाह 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 वाह, अभी भी परमानेंट है। हजार लाख सही लेट मी टेल यू वन थिंग नाउ। तेरी गली में ठिकाना है मेरा परमानेंट। वाह। और अर्ज क्या है? ख्याल दिल से एडिक्शन का तू निकाल भी दे। अच्छा, ख्याल दिल से एडिक्शन का तू निकाल ही दे। वो लैंडलॉर्ड तेरे दिल का, मैं नहीं हूँ टेनेंट। लैंडलॉर्ड तेरे दिल का, मैं नहीं हूँ टेनेंट। एडिक्शन का तू निकाल ही दे। लैंडलॉर्ड तेरे दिल
डोंट टॉक अगर ठीक है डजंट मैटर ठीक है डजंट मैटर जरा सी तेरी भी स्माइल